تو ہمارا مستقبل بھی جی بڑا گلومی ہے خدا نخواستہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جو بے شمار مسائل ہمیں لوکل لیول کے اوپر درپیش آتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ، ان میں سے ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے جی ٹریفک کا. اور ٹریفک کے اندر جو سب سے زیادہ سیریس ایشو ہے وہ بائکس کا ہے. ہمارے ہاں آزاد کشمیر کے اندر انفارچونیٹلی ڈیٹا بیسز اس طرح سے نہیں تیار کیے جاتے، اس لیے ہمیں دوسری جگہوں کا ڈیٹا لے کے اور اس کو پھر ایکسٹراپولیٹ کرنا پڑتا ہے آزاد کشمیر پہ. پنجاب کے اندر جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں ان میں سے 75% جو رجسٹرڈ ہیں وہ بائکس ہیں. ٹریبیون کی ایک رپورٹ ہے جس نے کوٹ کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کو، جس کے مطابق پاکستان کو ٹریفک کے لحاظ سے دنیا میں 67 نمبر پہ ڈینجرس ملک اس رپورٹ میں قرار دیا گیا. اور اس رپورٹ کے مطابق 2.69% جو اموات ہیں وہ ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی ہر 1000 بندہ جو مرتا ہے اس میں سے تقریباً 26 لوگ جو ہیں 27 لوگ وہ ٹریفک حادثات کی نظر ہوتے ہیں. تو ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ ہر ایک نے مرنا ہے، وہ آئی کو بندہ مر جائے اپنی، لیکن مطلب اس طرح سے مفت میں تو اپنی جان نہیں دینی چاہیے کہ آپ روڈ حادثوں کی نظر ہو جائیں. پچھلے 1 ماہ کے اندر کوٹلی کے اندر 4 اسٹوڈنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے جی بائکس کے ایکسیڈنٹس کے اندر. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، آپ سارے لوگ اویئر بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ایک قیمتی جان ضائع کرنے اور اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، دیکھیے ایک ان پڑھ آدمی کی جان میں اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی جان میں مطلب ایک لائف دونوں کی برابر ہے، بٹ پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کا بڑا فرق ہے. ایک پڑھا لکھا آدمی یا جو ایک اسٹرائیو کر رہا ہے پڑھنے کے لیے، اس کی ایسپریشنز ہیں زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، اس کی پروڈکٹیوٹی اس ملک کے لیے بہت ڈفرینٹ ہے ایک ان پڑھ آدمی کی نسبت. تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے بچانا ہے. تو آپ سب سے پہلے جی آپ اپنے آپ کو ویلیو کرنا شروع کریں. آپ اپنے اندر یہ احساس لائیں کہ آپ کتنے قیمتی ہیں. آپ سب لوگوں کو سب سے پہلے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا مستقبل، آپ اس ملک کا مستقبل آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ ان کچھ قیمتی لوگوں میں سے ہیں جو اس ملک میں، ہمارا لٹریسی ریٹ ادروائز بڑا کم ہے، اور جو لٹریسی ریٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں سے جو یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ کم ہے نا. لٹریسی ریٹ تو صرف وہی لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. یونیورسٹی کے گریجویٹس تو پاکستان کے اس کی پرسنٹیج تو اور زیادہ کم ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ آپ لوگ قیمتی ہیں، آپ کی جان اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہے. تو آپ نے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ کے پاس اگر کچھ لاکھ روپے ہوں تو آپ بڑے سیف میں اس کو تالے کے اندر اور بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اگر جیب میں کس نے پیسے رکھے ہوں تو اس جیب سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا کہ کوئی نکال نہ لے. آپ اپنی جان کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ میں سے میجورٹی جو ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی امپیریکل ڈیٹا میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائکرز ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے. اور اٹ از ویری انفارچونیٹ، میں نے یہاں پہ کوٹلی کے اندر میں نے 6 سال کے بچے کو بھی یہ رائڈ کرتے ہوئے دیکھا بائک پہ. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ جیسی ان کی بہنیں ہوتی ہوں گی، وہ کیسے ان کو بائک پہ جانے دیتی ہیں. بہنیں تو جو ہیں وہ خواتین ادروائز دے آر ویری مدرلی ٹورڈز دیئر بردرس ایون. تو آپ لوگوں سے جو بہنیں ہماری، آپ سے گزارش ہے کہ جن کے گھروں میں بائک ہیں اور بھائی ہیں، وہ کائنڈلی اپنے بھائیوں کو اس چیز پہ فورس کریں کہ وہ ہیلمٹس پہنیں، ادروائز ان کی زندگی خطرے میں ہے. اوور سپیڈنگ نہ کریں. آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ایک گاڑی میں اور بائک میں فرق ہے. گاڑی جو ہے آپ کو کرو کی پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، گاڑی میں آپ تک وہ شوق آنے میں بیچ میں پورا ایک گاڑی کا اسٹرکچر انوالوڈ ہے. بائک کے اوپر تو آپ کے پاس دیر از نو پروٹیکشن اویلیبل، اور اس پہ اگر آپ ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بلٹ پروف جیکٹ پہنے بغیر بالکل نہیں رہتے، جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو ایسی بیوقوفی نہ کریں. تو برائے مہربانی آج کا جو میں سب سے پہلے جو مجھے چیز کرنی چاہیے، جو میں آخر پہ ذہن میں آئی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کا اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کا. آپ سب لوگوں نے اس ایفرٹ کو میں ہمارا ساتھ دیا. یہ ایفرٹ یونیورسٹی کے لیول پہ کی کہ سیمینار کا انعقاد کیا اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کے اوپر. یہ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. آپ لوگوں کی زندگی ہوگی تو پھر باقی ساری چیزیں ہوں گی. تو اس پہ آپ سب لوگوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سویلائز کریں. فیاض سرور صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ ٹریفک انسپیکٹر ہیں، یہ خود موٹر وے پولیس کے اندر سرو کر کے آئے ہوئے ہیں، اور میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی
کا इनसे वास्ता पड़ा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बड़े महज़ब हैं, बड़े तहज़ीब याफ्ता हैं, बड़े कल्चर तरीके से आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे. अगर आपके साथ कोई भी पुलिस एहलकार ने पहले अगर किसी कोई बदअखलाक़ी या बदतमीज़ी की है तो मैं एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एटीट्यूड मैं आप सब लोगों से आई सीक योर पार्डन मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे. इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एहलकारों को ये बताएं, उनकी ये तरबियत. देखिए हम इसी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम जनरली बहुत ज़्यादा शाइस्तगी से काम नहीं लेते अपनी गुफ्तगू में. तो आप लोग ये बेहतर समझें. मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि अगर दो लोगों का आर्गूमेंट होता है तो उनके अंदर जो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर उनके बीच में अगर कोई स्कफल होती है, कोई आर्गूमेंट होता है, तो जो पढ़ा लिखा आदमी है ही इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल. तो आप ये समझिए कि आप मेरे ख्याल में ट्रैफिक एहलकार की निस्बत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, तो आपका रवैया ज़्यादा सिविलाइज्ड और ज़्यादा कल्चर्ड होना चाहिए. उसके बावजूद भी अगर किसी के रवैये से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ. हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने एहलकारों को बताएं. बुनियादी तौर पर जो उनका रवैया कई दफ़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि एहलकारों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े कम है. आपको शायद आप सरप्राइज़ होंगे कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर देर आर 560 पीपल ट्रैफिक पुलिस के अंदर. इतने ही 568 568 पीपल फॉर एंटायर AJ&K. ठीक है. और जो ट्रैफिक का लोड है कोटली के अंदर डेली ओवर 4000 व्हीकल्स कम्यूट ऑन द पिंडी रोड. तो उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर एम्प्लॉयड है, ओवर बर्डन हैं लोग. तो जिस वजह से शायद उनका रवैया बाज़ दफ़ा वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ उनकी तरफ से. अगेन वील ट्राई कि उनका रवैया आपसे बेहतर हो. जो चीज़ आपने करनी है वो ये करना है कि आपको अगर कोई ट्रैफिक वाला रोकता है तो भागना नहीं है, ताकि उसे आपकी चाबी ना निकालनी पड़े. उसको ये पता हो कि जब मैं ये शायद देखिए आप में से कई लोग सऊदीया गए होंगे, वो जो शुरता एक होता है ना उनका, वो जहाँ पे इशारा कर दे वहाँ पे 1000 गाड़ी होगी तो खड़ी हो जाएगी, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे. तो हम सब लोगों को अपने रवैयों को बेहतर करने की ज़रूरत है. तो आप भी भागिए मत उनसे, वो भी इंशाल्लाह ताला चाबी नहीं निकालेंगे. और दूसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, आई कैन एश्योर यू, आप अगर हेलमेट्स पहनेंगे तो आपका कोई चालान नहीं होगा, आपको किसी को रोकने की नौबत ही नहीं पेश आएगी. तो आज का जो ये सेमिनार है, इसका जो बुनियादी तौर पे मैसेज है वो ये है कि बाइकर्स जो हैं वो काइंडली अपनी ज़िंदगी को कीमती जाने और हेलमेट पहने, और बाइक को बाइक समझें, उसको बिल्कुल BMW ना समझें, उसको बाइक की स्पीड पे ही चलाएं. बिल्कुल धूम के ऋतिक रोशन ना बने इन रोड्स के ऊपर. CD70 होता है, 125 होता है, 660 cc की स्पीड पे ना चलाएं उसको, और बिल्कुल अपनी स्पीड को भी कंट्रोल में रखें, हेलमेट्स भी पहनें. और लेट मी टेल यू, वेयरिंग अ हेलमेट इज समथिंग वेरी ग्लैमरस, वन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. वो आप ये ना समझिए कि उससे कोई बंदे का डैश ड्रामा जो है वो ख़राब होता है, बड़ा बंदा बेहतरीन लगता है उसके बीच में. तो अच्छे हेलमेट्स पहने और ज़रूर पहने हेलमेट. इसके अलावा कोई आपका अगर सवाल हो हेलमेट्स के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, किसी और इशू पे आप कोई और चीज़ समझते हैं कि योर एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू डू समथिंग फॉर यू, तो काइंडली बताइए जी प्लीज़. मेरा नाम अवैस कहता है, पाकिस्तान का ब्रांच है. तो मैं कहता हूँ कि स्पीड ब्रेकर वगैरह भी होने चाहिए, हमें पता चले कहाँ कितनी स्पीड पे नहीं है, और ट्रैफिक के सिग्नल भी नहीं है यहाँ क्या. अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त इनने सवाल पूछा है. इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि वो पिछले दिनों वकला ने PIC के ऊपर हमला किया. तो उनके लीडर से किसी ने पूछा जी कि आपने हमला क्यों किया, तो एक उनके सरबराह थे, वो कहने लगे, सदर इस्लामाबाद बार, कहते हैं जी कि वो हम 7 किलोमीटर चल के गए, हमें किसी ने रोका ही नहीं. तो अगर किसी के रोकने पे ही आपने रुकना है तो फिर तो आप देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है ना. हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें आप बिलीव करें कि 20 लोग कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर्स लगाएं, 20 एप्लीकेशन आती हैं कि स्पीड ब्रेकर्स क्यों लगाए हैं. तो उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो रश वाली रोड्स हैं जिन पे ट्रैफिक का लोड ज़्यादा है और जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस भी ज़्यादा होते हैं, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर. ये पिंडी रोड जो है, जो आपके मेन बाज़ार में से गुजरती है, इसके ऊपर भी और जो बाईपास रोड है, इस पर भी इंशाल्लाह ताला आप कुछ अरसे में देखेंगे स्पीड ब्रेकर्स. आप देख रहे हो कि डेवलपमेंट का काम कहीं ना कहीं पे चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं, ये होंगी इंशाल्लाह ताला. बट आप अपने आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि स्पीड कहाँ पे ब्रेक करनी चाहिए. जी प्लीज़. जी हाँ. हेलमेट के बगैर फ्यूल नहीं मिलेगा. पाकिस्तान में तो इसका काफ़ी
और ये रहता है लेकिन गुजरात कश्मीर में बस बैनर लगाए उसके बाद अमल कुछ नहीं हुआ। ठीक इससे हमारे थोड़ा सा कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करें ताकि जो जितने भी पेट्रोल मालिकान हैं ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको ना पेट्रोल ना दिया जाए विदाउट हेलमेट किसी को भी, ठीक। क्योंकि ये ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। मैंने शायद जो अपनी पहली पोस्टिंग के ऊपर जो आप सब लोग अवेयर लोग हैं, दफ़ा 144 लगाई जाती है जी, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी एक सेक्शन है 144 जिसके तहत किसी भी चीज़ पे आप पाबंदी लगाते हैं। तो मैंने शायद जो पहली या दूसरी जो 144 लगाई थी वो इसी चीज़ पे लगाई थी कि जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं वो बाइकर्स को बगैर हेलमेट के पेट्रोल सेल ना करें। अच्छा, इस पे मैंने बड़े हैवी फाइन्स भी पेट्रोल पंप्स वालों को किए। ये जो आप कह रहे थे कि खाली बैनर लगा है, आई हैव फाइंड देम टू द ट्यून ऑफ 25,000 रुपीज़, 25 हज़ार रुपये उनको फ़ाइन किया। बल्कि उसके ऊपर वो पेट्रोल पंप मालिकान इकट्ठे हुए कहते हैं जी हम तो कोटली में सेल ही बंद कर देंगे अपनी। अभी हमारी उनके साथ मेरी पिछले हफ्ते में मीटिंग हुई है। आने वाला जो हफ्ता है इसमें 23 से लेकर 27 के दौरान एक बड़ी मैसिव कैंपेन इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। आपने अगर हेलमेट पहने बगैर निकलना है तो बगैर चालान होंगे आपके, तो हेलमेट पहन के निकलिएगा ज़रूर। उसमें हम सख्ती से इस चीज़ पे अमल दरामद कराएंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। बदकिस्मती से हम लोग दूसरे की तरफ तो इशारा कर देते हैं कि फ़लाँ ये करे फ़लाँ ये करे, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप्स वालों को मैंने यही चीज़ बताई। मैंने कहा जी आप एक दिन 2 दिन के लिए अगर अपने पेट्रोल की सेल बंद कर दें, उन लोगों को जो हेलमेट्स नहीं पहनते, तो अल्टीमेटली कोई पिंडी से जाके तो नहीं लाएगा ना पेट्रोल, वो यहीं से लेगा, तो मजबूर होकर फिर हेलमेट पहन के ही आएगा। लेकिन मैंने ये पूरे मुल्क में देखा है जी, पिंडी में भी देखा है, मुल्तान में भी देखा है कि वो पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो खुद ही उनको तरीकाकार बताते हैं कि वो दूसरे वाले से हेलमेट ले लो, या खुद से उन्होंने एक हेलमेट साइड पर रखा होता है। उन्होंने अपनी सेल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उन्होंने एक हेलमेट खरीद के रख लिया साइड पे कि जो कोई आए वो पहन ले और रुजत पूरी कर ले। तो बहरहाल हम इसके ऊपर भी एनफोर्स कर रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी, अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर तो कोई और काम करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। इंशाल्लाह ताला इसको इन्फोर्स करेंगे जी। कोई और जी प्लीज़ आप ही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका बहुत बड़ा इशू ये है कि जो टोयोटा है इसमें इन्होंने 4 बंदे खाते हैं और ये पिंडी का सफर चलाते हैं, दूर का सफर। आप इमेजिन कर लें कि अगर 2 बंदे अगर आप हैवी बॉडी के आ रहे हैं तो वहाँ क्या आ रहे हैं। और ये ट्रैफिक की लालच के अंदर ना हमारे अब पीछे एक बार हिंदू की गाड़ी की जो इन्होंने 3 दिन बजट खाना शुरू किया और 50 रुपये एक्स्ट्रा किए, और एक हफ्ते बाद इन्हें फिर वो गोल खत्म करके ना 4 बजट खाना। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हाल है कि मतलब इनके सफर के लाइफ करना बहुत मुश्किल है। सही बात है। तो इस हवाले से कुछ थोड़ा बहुत किया जाए ताकि हमारा जो सफर है उससे मुश्किल भी हो, ताकि हमारे बाहर जाने का जो दूर दराज इलाके हों वहाँ पे इजीली जा सकें। अच्छा, आई फुली एग्री विद यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया। 3-4 बार मैं इनके साथ मीटिंग कर चुका हूँ। आप लोग सारे जी याद रखें, खुद झगड़ा नहीं करना है, आपने हमें रिपोर्ट करना है। हमने जो इनको सीटिंग अरेंजमेंट बताई है वो ये है कि टोयोटा है इसकी फ्रंट सीट के ऊपर एक सवारी बैठेगी। फ्रंट सीट इज़ मेंट फॉर 1 पैसेंजर ओनली। वो जो दूसरी जो सीट उन्होंने बनाई होती है बेसिकली वो इंजन के ऊपर का कवर है। तो फ्रंट सीट के ऊपर 1 सवारी, सेकंड सीट के ऊपर 4 पैसेंजर्स, थर्ड और फोर्थ सीट के ऊपर 3 पैसेंजर्स और लास्ट सीट के ऊपर 4 पैसेंजर्स। दिस मेक्स 15 पैसेंजर्स प्लस 1 ड्राइवर। इससे अगर कोई ज़्यादा बैठाता है तो आप एक बार उसको निशानदेही कर दें और उसको बताएं कि मैं कंप्लेंट करूँगा। हमने अपने नंबर्स केबल के ऊपर भी ऐड दिया है, मैं यहाँ पे भी छोड़ जाऊँगा, DTI साहब का नंबर, अपने ऑफिस का नंबर, आप गाड़ी का नंबर नोट करें और हमें कंप्लेंट करें। इंशाल्लाह ताला हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम उनको ये बता चुके हैं, 3 से 4 बार उनको हम बता चुके हैं कि ये अरेंजमेंट है जिसके मुताबिक आप पैसेंजर बैठा सकते हैं, इससे ज़्यादा। लेकिन कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब शहरी अपने हक़ के लिए खुद बोलेंगे, और बोलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप स्टूडेंट से आप झगड़े शुरू कर दें। उसका मुहज़्ज़ब तरीक़ाकार ये है कि आप हमें कंप्लेंट करें, उसकी उस गाड़ी का नंबर नोट कर लें, हमें कंप्लेंट करें इंशाल्लाह। इसके अलावा गाड़ी